اس کے بعد 9 بجے دونوں ماں بیٹوں کے جنازے ایک ساتھ اٹھے تو گاؤں میں کہرام مچ گیا. پوری حویلی چیخو پکار سے گونج رہی تھی. میں خود بہت زیادہ رو رہا تھا. زندگی میں پہلی بار میں نے کوئی دکھ دیکھا تھا، اور یہ دکھ ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ 2 تھے. میں بھی ابا کے جنازے کے ساتھ گیا اور ان کی اور اماں جی کی تدفین کر کے تقریباً 11 بجے ہم لوگ حویلی واپس آئے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر بالکل بھی جان نہیں ہے. میں آ کر برآمدے میں اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ گیا. ہمارے ساتھ امی بھی بیٹھی تھیں اور سب لوگ ہمیں حوصلہ دے رہے تھے اور مجھے سمجھا رہے تھے کہ اب تم اس گھر کے سربراہ ہو. اب تم نے اپنے ابو کی جگہ لینی ہے. چچا اور تایا بھی مجھے حوصلہ دے رہے تھے کہ ہم بھی تمہارے ابو کی طرح ہی ہیں. لیکن حقیقت یہ تھی کہ چلے جانے والے کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. 12 بجے تک ہم تقریباً سب بیٹھے رہے. اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. امی کو چچی اپنے ساتھ لے گئیں کیونکہ امی اور چچی کی بہت گہری دوستی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے بہنوں کی طرح پیار کرتی تھیں. میرے کمرے میں شازیہ، عظمیٰ، خالہ نرگس اور باجی عارفہ بیٹھی تھیں. کمرے کا دروازہ بند تھا. ہم سب بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے. میرا سر خالہ نرگس کی گود میں تھا جبکہ باجی عارفہ نے عظمیٰ اور شازیہ کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اور ہم سب کو تسلی دے رہے تھے. خالہ بولی، ندیم اب تم نے اپنے سب گھر والوں کا خیال رکھنا ہے. میں نے کہا خالہ، ابو نے بھی جانے سے پہلے یہی بات کی تھی. خالہ بولی، یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد تم بدل جاؤ اور اپنی بہنوں اور اپنی امی کی فکر چھوڑ دو. میں نے کہا نہیں خالہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. جب ایک بجا تو خالہ بولی، ٹھیک ہے ندیم، اب ہم جاتے ہیں، تم آرام سے سو جاؤ. میں نے خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا نہیں خالہ، آج آپ لوگ ادھر ہی سو جاؤ. باجی بولی، ٹھیک ہے ندیم، تم لوگ ادھر سو جاؤ، میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی ہوں. میں نے کہا نہیں باجی، آپ بھی ادھر ہی ایڈجسٹ ہو جائیں. میری بات سن کر خالہ تھوڑا حیران ہوئی لیکن بولی کچھ نہ. باجی بولی، ندیم تمہارے ساتھ تو پھر بھی تمہارے گھر والے ہیں. تم سوچو جب فرید کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت میں بالکل اکیلی تھی اور فرید کی دوسری بیوی نے مجھے ان کا منہ بہت مشکل سے دیکھنے دیا تھا. اور تم تو خوش قسمت ہو، تمہارے ساتھ تمہارے سب گھر والے ہیں. اس کے بعد ہم سب لیٹ گئے اور پتہ نہیں کب نیند آ گئی. صبح میری آنکھ تب کھلی جب مجھے بہت شور سنائی دیا. میں اٹھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا. میں بھی بیڈ پر بیٹھا تھا کہ کمرے میں عظمیٰ آئی. میں نے کہا باہر
शोर किस चीज का है? थुस्मा बोली, सब गांव वाले आए हुए हैं, तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ। और एक एक कर उस्मा बाहर चले गए। हमारे गांव बल्कि ज्यादातर गांव का ये रिवाज था कि जब भी किसी के घर फौतगी होती तो मोहल्लेदार या गांव वाले फौतगी वाले घर 3-4 दिन लगातार चक्कर लगाते थे और इस दौरान कुरान ख्वानी भी होती थी। तो आज हमारे घर भी शायद ये लोग इसलिए आए थे। मैं जल्दी से उठकर बाहर गया तो देखा सब गांव के मर्द एक तरफ चचा ताया के साथ बैठे हुए थे, शायद अफसोस कर रहे थे, जबकि गांव की औरतें मेरी अम्मी को घेरे में लेकर बैठी थीं और साथ साथ गुठलियां भी पड़ रही थीं। मैं पहले वॉशरूम गया, वहां से फ्रेश होकर बाहर आया और सीधा जाकर मर्दों में बैठ गया। कहने वाले कहते हैं कि मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता, और शायद यही वजह थी कि मैं कल के मुकाबले में आज बहुत हल्का महसूस कर रहा था। जैसे ही मैं सब में जाकर बैठा तो सब ने मुझे हौसला देना शुरू कर दिया। गांव के एक बुजुर्ग बोले, बेटा ये तो कुदरत का निजाम है, हम सब ने आहिस्ता आहिस्ता जाना है। बस हम सब यही दुआ करते हैं कि किसी पर बोझ ना बने और किसी का मोहताज ना हो। तुम्हारे वालिद तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि चंद ही दिनों में वो ऊपर चले गए और वो बहुत नेक आदमी थे। यकीनन इनका खात्मा बिलईमान हुआ होगा और इनकी आखिरी आरामगाह भी जन्नत नुमा होगी। फिर वो बुजुर्ग बोले, बेटा वालिदैन के इंतकाल के बाद सबसे बेहतरीन सदका जारिया इनकी औलाद होती है, जो अच्छे और नेक काम करके इनको इसाले सवाब करती है। तुम अपने वालिद के नाम का कोई पंखा या कोई पानी वाला कूलर मस्जिद में लगवा दो। इसके थोड़ी देर बाद देगें बनकर आ गईं और सब खाना खाने लगे। खाने से फारिग होकर गांव वाले थोड़ी देर बैठे और फिर अपने अपने घरों को चले गए। मैं उठकर दोबारा अपने कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में दोनों फूफो, दोनों मामियाँ, अम्मी, चची, ताई, बाजी हदीका, बाजी रहीला सब लोग आ गए और हम सब लोगों को काफी देर बैठकर बातें करते रहे वो लोग मुझे समझाते रहे। अम्मी भी बोली, हाँ नदीम, अब सब कुछ तुम्हें ही देखना पड़ेगा। अम्मी भी अपने आप को काफी संभाल चुकी थी। शाजिया और उस्मा भी अब कुछ बेहतर नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद सब उठकर बाहर जाने लगे तो फूफो बोली, चलो अब रूटीन के काम करो। हमारे खानदान में ये भी रिवाज था कि 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं मनाया जाता था। मैं उठकर बाहर आया और खेतों में चला गया। तकरीबन शाम तक मैं खेतों में रहा। इसी दौरान मैं जब भी कोई चीज देखता तो मुझे अब्बू की याद आती, तो मैं दिल में यही इरादा करता कि खेती बाड़ी के इस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। शाम को मैं घर आया तो सब उदास बैठे थे। शादी की तैयारियां भी रोक दी गई थी। मेरी नजर अम्मा की चारपाई पर पड़ी तो मुझे वो वक्त भी याद आ गया जब मैं सुबह उठकर बाहर आता था
और अम्मा की चारपाई पर बैठ जाता था। मैं फ्रेश हुआ और छत पर जाकर चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर बाद ऊपर हैना आ गई और मेरी चारपाई पर बैठ गई। हम दोनों के पास कोई बात करने को नहीं थी। थोड़ी देर बाद हैना बोली, नदीम तुम अकेले ऊपर क्या कर रहे हो? सब नीचे बैठे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, बस वैसे ही दिल बुरा हो रहा था। हम बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में बाकी लड़कियां कंदील, इकरा, अनम, रिमशा, कश्यप, सिद्रा सब ऊपर आ गए। इनके हाथ में लूडो थी। ये लूडो हाथ से बनाई हुई थी और एक वक्त में तकरीबन 10 लोग इस लूडो को खेल सकते थे। सब ने इसरार करना शुरू कर दिया कि नदीम भाई आप ही लूडो खेलें। मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे उठाकर नीचे बैठा दिया और हम सब बैठकर लूडो खेलने लगे। लूडो खेलने का फायदा ये हुआ कि मेरे दिमाग में जो सोचें चल रही थीं वो दूर हो गई और मैं दोबारा हंसने मुस्कुराने लगा। और इसी दौरान पता नहीं चला कि हम लोग कितनी देर तक खेलते रहे और रात हो गई। उस्मा ऊपर आई और बोली, कितनी देर हो गई है आप लोगों को खेलते हुए, अब नीचे आ जाओ, खाना बनकर तैयार है। मैंने कहा बस ये थोड़ी सी गेम रह गई है, ये खत्म करके हम नीचे आते हैं। ये सुनकर वो नीचे चले गए और तकरीबन 15-20 मिनट बाद हम लोगों ने गेम खत्म की और हम सब भी नीचे आ गए। खाना खाते हुए अम्मी ने कहा कि हमें कई लोगों ने मशवरा दिया है कि हम ये शादियां सादगी के साथ कर लें। फूफो नाहिद ने मेरी अम्मी से कहा, देखो जाने वाले चले गए और हम इनके दुख में 3 दिन सोग मना रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है कि हम इनके जाने के बाद इन बच्चों की खुशियों को ख़त्म कर दें और इनकी शादी सादगी से करें। इन लोगों को भी शौक था कि इनकी शादी धूमधाम से हो, इसलिए हम 3-4 दिन बाद दोबारा इसी जगह से शादी की तैयारियां शुरू करेंगे जिस जगह से हमने छोड़ी है। बाकी सब ने इस बात से इत्तेफाक किया। खाना खाने के बाद सब चारपाइयों पर बैठ गए क्योंकि 2-3 दिन हमने ढोलक नहीं बजानी थी और सब बैठकर बातें करने लगे। इतनी देर में चाय भी बनकर आ गई और सब चाय पीने लगे। कल के मुकाबले में अब हम नॉर्मल हो चुके थे और फिर चाय पीने के बाद सब लोग उठकर अपने अपने कमरों में चले गए। लाइट गई हुई थी और अभी सिर्फ 9 बजे थे, इसलिए मैं बाहर ही चारपाई पर लेट गया, जबकि मुझसे थोड़ा दूर आसिफ, खुर्रम अलैधा चारपाई पर लेटे थे, जबकि इनके पास बाजी हदीका और आसिफ की बहनें भी बैठी थीं। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।